Hello students, so this is chapter number 14, statistics. What is there in this chapter? There are three things we have to do in this chapter. First is mean, second is median, and third is mod. Okay, mean, there are two methods to find the mean, that is direct method and assume mean method. One more method is there, that is step deviation method, but now that method is not in your course. Okay, so we'll not do that. And how we'll find the mean? Median के लिए formula है, this is L plus n upon 2 minus CF upon F into H. And for finding mod, one more formula is there, that is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Okay, so we'll discuss about all these things in this chapter, isn't it? Okay, so now come to exercise 14.1, question number 6. Here we have to find mean only, okay, and we'll find mean by assume mean method. Okay, so CI means class interval and frequency, both are given in the question. First of all, we have to find x means class mark, and how we'll find class mark? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 हम करते जाएंगे और हमें क्लास मार्क्स की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. सो दिस प्लस दिस अपॉन 2 करेंगे तो 125, दिस प्लस दिस अपॉन 2 दैट इज 175, and similarly 225, 275 and 325 will come. Now for finding assume mean method, we have to choose one more thing, that is D. एक D हमको एक नई चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, मीन्स वी हैव टू मेक अ न्यू कॉलम हेयर. ओके, सपोज आप assume mean method यूज़ नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट मैथड यूज़ कर रहे होते तो इतना सफिशिएंट था. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू डू एफ एक्स के बाद आपको एफ एक्स का सिग्मा करके और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके आपको मीन फाइंड करना होता था. बट अज्यूम मीन के केस में आपको एक न्यू कॉलम फ्रेम करना है फॉर डी. डी मीन्स एक्स माइनस ए मीन्स वॉट? अज्यूम नंबर. आप एक कोई सभी नंबर इस एक्स में से चूज़ करो और उस नंबर को आप सारी एक्स की वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ. सो दैट विल बी द डी. सो मैंने यही किया, 125 माइनस 175 तो माइनस 150. ठीक है, क्योंकि मैंने 175 को एज ए चूज़ किया. आप इसमें से किसी को भी ए चूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, आंसर एट लास्ट सेम ही आएगा. सो 125 माइनस 175 माइनस 150, देन 0, फिर 225 माइनस 175 तो 50, 100, 150 ऐसा किया. नाउ वी हैव टू डू एफ डी. एफ डी मीन्स डी की सारी वैल्यूज़ को एफ की सारी वैल्यूज़ से 1 बाय 1 आपको मल्टीप्लाई करना है. 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 200, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, एंड देन 12 मल्टीप्लाई बाय 50 विल बी 600, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 200 एंड देन 300. You can cancel this minus 200 and 200, and when you will add them 600 and 300 it will be 900. Clear? Now this is the formula to find mean by assume mean method. x bar, आप मीन को ऐसे शो करते हैं, a plus sigma fd upon sigma f. What is the value of a here? 175, and then sigma fd 900 and sigma f is 25. sigma f means sum of all the values. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन भी है वैसे आपको 25. तो आप 900 अपॉन 25 करोगे, 900 अपॉन 25 इज 36, एंड 175 प्लस 36 विल बी 211. सो 211 इज योर मीन हेयर. गॉट इट? Okay, now this is 14.2, question number 2. Now we have to find mod in this question. Okay, and what is the formula to find mod? L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 into h. And this is my question. Class interval is given and frequency is given. Okay, so with the help of this table only we can easily find all the values. हम ये सारी की सारी values कहाँ search करेंगे? इस table में ही हमें सब मिल जाएगा. So what is f1? First of all, f1 is highest frequency of this table, and highest frequency of this table is 61. So means this is your f1 and this is your f0. just ऊपर वाली वैल्यू है f0 और just नीचे वाली वैल्यू है f2. क्लियर? ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो रो है ये आपकी है मॉडल क्लास. फाइन, इस मॉडल क्लास से आपको L मिलेगा. L मीन्स लोअर लिमिट. लोअर लिमिट है इसकी 60, एंड H मीन्स डिफरेंस बिटवीन बोथ द लिमिट्स, एंड दैट इज 20. And rest values are here 61, 52 and 38. Now put all the values in the formula, you will get the answer. Okay, that will be the mod. तो mod find करने के लिए what is L here? 60 plus f1 minus f0 means 61 minus 52. Okay, 61
minus 52 upon 2f1, and 2f1 means 61 multiplied by 2, that is 122, minus f0 minus f2 means 52 into minus 38, 52 minus 38, and height is 20. Fine. 60 plus 61 minus 52 कितना 9. Okay, 122 minus 52 minus 32 and whatever. 122 minus 58 minus 38 means you have to add them. 8 to 10, and then this is 90 into 20. When you will solve it, 9 upon this into 20, you can multiply this. 9 into 20, that is how much? 180, and 180 upon this will be, answer will be 65.6 something after solving it. Okay, so 65.6 will be your mod. फाइन. यू नो वन थिंग, 65.6 हमेशा कहाँ लाए करेगा? इस मॉडल क्लास के बीच में ही लाए करना चाहिए. वो मीन्स इसकी जो वैल्यू है, मॉड की जो वैल्यू है, वो 60 और 80 के बीच में ही लाए करनी चाहिए हमेशा. ओके, गॉट इट? Okay, now come to the next concept, that is median. How to find the median? Median with the help of this formula, that is L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Okay, so this is 14.3 question number 2. Here we have to find the value of missing frequency, that is X and Y. ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए what we have to do, we have to find the cumulative frequency. Cumulative frequency सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी आपको, और वो कैसे फाइंड करते हैं? देखो, CF मीन्स फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 आप ऐड करते जाओगे. ठीक है, 5 विल बी द फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन 5 प्लस एक्स, देन 5 प्लस एक्स प्लस 20, दैट इज 25 प्लस एक्स, देन दिस प्लस 15, दैट इज 40 प्लस एक्स, एंड देन दिस प्लस दिस विल बी 40 प्लस एक्स प्लस वाई, and this plus this will be 45 plus x plus 5. Okay, remember one thing, the last cumulative frequency will be the sum of the frequency. ठीक है, means इन सब का जो sum है, that is 60 here, 60 is given here, तो 45 plus x plus y किसके इक्वल हो जाएगा? 45 plus x plus y will equal to 60. ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इनके टोटल के इक्वल होती है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन से x प्लस वाई इक्वल टू 15 होगा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो वी हैव टू मेक 2 इक्वेशन हेयर. ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही आपको x और y की वैल्यू दे सकती है हमेशा. ओके, now median is already given in the question, and what is the formula to find the median? L plus n upon 2 minus this. Okay, so it means with the help of this formula we'll make one more equation. अब देखो कैसे बनाए वो equation. x plus y equal to 15, equation number 1 तो आ गई. अब ये है 60. 60 क्या है आपका? sum of all the frequency. जो n upon 2 होता है that is 30, because sum of frequency will be your n. स्मॉल n की वैल्यू क्या है? जो आपका इन सब का टोटल है, तो n अपॉन 2 क्या होगा? 30 होगा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमेशा देखना कि जो 30 से जस्ट बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, या आपको सिर्फ ये देखना है कि 30 से जस्ट बड़ी कहाँ पे लाए कर रही है. ठीक है, या तो आप वो देखो, या फिर आप ये देखो कि जो मीडियन है वो कितना है आपका? 28.5. तो मीडियन 28.5 किस क्लास इंटरवल में लाए कर रहा है? मीडियन 28.5 आपका लाए कर रहा है इस वाली क्लास इंटरवल में. इट मीन्स ये आपकी मीडियन क्लास होगी. समझ में आया? क्योंकि आपको मीडियन गिवन है तो आप डायरेक्टली मीडियन क्लास फाइंड कर सकते हो, और इस मीडियन क्लास में ही सारी की सारी वैल्यूज़, इस फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो सब इसी में छुपी हुई है. तो आपको ये सब सर्च करना है. कहाँ से करेंगे? देखो, L मतलब लोअर लिमिट, तो L लोअर लिमिट है, मीन्स L क्या है इस क्वेश्चन में? 20 है, बिकॉज 20 to 30 है, तो 20 विल बी द लोअर लिमिट. H इज़ वॉट? डिफरेंस बिटवीन बोथ द लिमिट, दैट इज 10. ठीक है, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी विल बी 20 हेयर. नाउ व्हाट वी वांट? CF. CF मीन्स ये जो मीडियन क्लास है इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर CF इन योर टेबल. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ CF विल बी 5 प्लस एक्स. CF वैल्यू इज 5 प्लस x.
और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट n/2 ऑलरेडी वी हैव टेकन, दैट इज 30. ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला बिकॉज वी नो द मीडियन ऑल्सो. मीडियन इज 28.5 here. ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमको उठा के कहाँ पुट करनी है, इस वाले फॉर्मूले में. और इस फॉर्मूले जब आप पुट करोगे तो आपको एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, okay, so put all the values in the formula. Then 28.5 equal to 20 means L, and then n/2 minus CF upon F into H. Okay, CF, this is 5 plus X, so we have to put in the bracket because minus sign is outside the bracket. Now we'll open the bracket here and we can shift 20 this side, so it will be 8.5 because 20 यहाँ जाके subtract हो जाएगा. Now this is 30 minus 5 minus X upon 20 into 10. You can cancel this 0 and 0 also, right? Now this 2 you can shift here, so 8.5 multiplied by 2 will be what? Will be 17. 17 ही होगा ना, 8.5 multiplied by 2, and then 30 minus 5 is 25 and 25 minus X. Okay, now you can shift X this side and 17 that side. So X equal to 25 minus 17. 25 minus 17 will be what? 8. It means X की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 8 हो गई. फाइन, तो X की वैल्यू 8 और जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें यदि आप X की वैल्यू 8 पुट करोगे तो आपको Y की वैल्यू मिल जाएगी. सो वैल्यू ऑफ Y विल बी 7. So I hope it's clear everyone. It's very important question. Clear?